Okay. Anyway, recording is not required. You can watch me out for any time. So basically, this is a technical. This is what I have something made. I don't know how it work. First time I am getting beginning. Everybody able to see? Hello. Yes. Yeah. Okay. Fine. So this is the group we are having, and we are following from last more than a year. Easy stock karo. Most of you people are there. You have seen stop loss entry targets for so many stocks over there, short term as well as a long term. And apart from that, you people personally know me for sharing something which might be useful for somebody. So from this I can say why I started this. Like, I thought to start it, I don't know how it's going on, but most probably it will add the value. So easy stock karo technical basis is the basically a technical course on a stock market. It will teach you, or it will try to understand how market behave, and actually what you should not do. In the terms, you should not lose the money directly. This is not guarantee that you will make the money, but probably with the rules and process and system, if you follow, you are there is a highest probability you will make money. So we'll start with easy stock karo technical basis. What you are expecting from this? Then this is basically a technical course. So you will be hearing so many terms which you never heard, जो आपने कभी सुना नहीं होगा. तो सबका बेसिक एक्सप्लेनेशन बताने के लिए ट्राई करूंगा. ओके. सो दिस इज व्हाट विल स्टार्ट. क्या इसका क्या. ओके. So you people are thinking the stock market, it's not the thing that which you put money and you will get money. Whenever you are putting your hard earned money, think this is a business, and when you are thinking as a business or a businessman, it comes with the profit and loss statement. So you will have the profits, but there are the time you will have the losses. But you have to reach to this state where your profits are growing and your losses to be minimized. आपको यहाँ पे डिसाइड करना है हाउ माई प्रॉफिट शुड बी ग्रोइंग हायर and how my losses are minimizing. It is not guaranteed, and nobody can teach you like this कि losses होगा ही नहीं. And if somebody having that thing, it might be copied by everybody else and nobody working in the whole world. So basically, stock market, think like a business. You are putting money into someone who is successful in that business. So you can think of TCS, or you can think of Wipro, or you can think of Hindustan Unilever. They are running their business as a successful for last 20, 30, 40 years, and they have proven history. So you are the smart people who are investing, because we don't have the capital to copy paste or to build up the new TCS or new Hindustan Unilever. So what we are doing, we are investing in their business in order to get out of something. So this is what the stock market business. And if it is a can be it a income source, yes, it can be the income source depending upon your skills. How much skills you are, what you do, what you don't do, how much discipline you are. But there is no formal education available, at least in India. Nobody teaches. So you have to think this business as you were, as of now, as a part-time source of business or part-time income source. And this is a skill. So skill will take the time to build up over the time. So don't get into the
like I can put money today if I learn this 20 session and I will make money from tomorrow. This will not happen for sure. You have to understand, you have to practice, you have to get it done by yourself for so many times. Then you will start getting reward from the market is not easy return money, like it's never easy to earn the money from the market. Maybe you people know or don't know that 95% of people lose money in the market. So understand this thing. From that 95%, the money is going to the 5% people. So that 5% are really smart money. They are really smart. They are not even talented. They are the smartest one. Okay. So from this course, what you are expecting, the basic of stock market and how stock market it will work, the every jargon things that you might be heard और आपने कभी नहीं पता किया होगा या फिर ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसी नॉलेज कि जो आपको पता नहीं है. Then the basically stock market reading, there are two type, which is a technical analysis and there are fundamental analysis. I will never go for the fundamental analysis, I will always go for the technical analysis. Now somebody can argue on this, let it be, because fundamental analysis took so much of time to learn and find out if I want to buy the stock or if I want to sell the stock. And out of that information, there is so information that is a misleading. So fundamental information, पहले तो information गलत है, तो data गलत है, so I cannot find out the correct information. This is what the problem with the fundamental. So I go with the technical analysis, which is the properly indication of price over the time, which is represented in the terms of Japanese candlestick formation. This basically we will learn the candlestick in this technical class or technical session. Then there is a type single and double candlestick formation which you can use for your trade entry exist. Then candlestick practical, once you learn both these things, then we can take the candlestick practicals on a real time chart where you can say or you can try to find out the pattern, the candle pattern, which we can use for the entries or exits. All of you understanding what I'm trying to say? You can type it down. Yes, no, कुछ नहीं समझ रहा. Hello. Yes, Sandy. I mean, Vivek. Okay. Okay. थोड़ा बीच बीच में हिंदी लेना हाँ, क्योंकि शायद हाँ. इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा. Okay. Okay. तो ये टॉपिक अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होंगे विच आई एम ट्राइंग टू cover in this all 20 session. The first is the trend. The trend in is my friend. So it's so simple. It's like can I give the example like a river? If you want to swim in the river, it is easy to swim along with the river, alongside the river, like where the river is flowing. So similarly in a stock market, it is easy to trade or easy to invest along with the trend. That's why trend is so important. If a market is trending up and you are going to short the market or you are going to sell oil, so you are anyway going to be in problem. So you have to learn the basic trends. We can go in the deep, how the trend form, then what are the type of the trend, then which trend you can use for the trade and when you can use the important patterns in the trend on a charts. So basically these trends you can find out from the candlestick pattern chart. Everybody has a broker account which have the charts, or if you don't have that account, we have a trading view site. This we can explain at that time. So from that you can look into the chart. Basically before putting any money, you are looking into the technical chart. If the technical chart indicating something to you, then only you enter. You are not putting your hard earned money on knowledge, on news, or if your friend suggested or if your Vivek suggested. No, you have to convince with that pattern, and you have to understand why you are entering, why you are putting your money,
how much your loss will be, your loss might be your loss, and how much you can have the profit, and why I am entering this all things. Going forward, when you are taking the trade, you are maintaining the trade general, which is called as a, it's Excel sheet. In this, you will write it down for first 500 or 1,000 trade. You can write it down why I am taking trade, which pattern I have observed, then what is my emotion at that time, whether I am greedy, whether I have fearful, या फिर मेरे को डाउट लग रहा है, मैं पैसा पुट करने में मेरे को डर लग रहा है, ये सब राइट डाउन करने का, ठीक है। देन दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैटर्न इन ट्रेंड ऑन अ चार्ट। बेसिकली सब कुछ चार्ट पे होगा, चार्ट में क्या क्या देखना है वो सब बता दूंगा। Then triangles and NRF. NRF is a narrow range formation where the buy sell are continuously happening. Nobody is giving up. So ये कोई पैटर्न्स है कि आपको चार्ट में ऐसा ट्राइंगल दिखेगा या फिर नैरो रेंज फॉर्मेशन दिखेगा, which can be used for your benefit to trade. Then this is the moving average magic rainbow. Magic rainbow is like, rainbow is having 7 color. Moving average we are using like a 9 moving average, which I will explain. Then RSI is relative strength index. This is defining how much strength you are having in that particular trend. Like while we are driving the car, we are putting the pedal on accelerator, like, and we are going. When you are trying to take the U-turn, you are slowing down your speed. At that time you are knowing that you have to take the turn. RSI is the indicator before price moving or before price are reversing. It will already indicate you that I am going to reverse. So this will explain in detail that price में strength नहीं बचा या trend में strength नहीं बचा. This is called as RSI. And don't go for the why YouTube are saying for RSI and all, like this is not how that trade, that not easy to trade. So we'll put the simple thing, then trend and practicals. This is what, whatever we are learning in this, we can take the on a chart as a practical. So this will be the, might be the bigger session, that patterns and practical. The next, okay, so basically market is any market or any price movement happen because of demand supply. In a layman language, uh, how much is the demand and how much is the supply. Even if you are buying something in a normal sabji market, this can work like कितना डिमांड है और कितना उसका क्वांटिटी अवेलेबल है, उसके ऊपर उसका प्राइस डिसाइड होता है. So we will learn over here professional art of demand supply. We can, on a chart we can able to find out where can be the demand, most probable demand. We can have the most probable supply zone, and from that demand and supply zone we can try to find out or fine tune our entries and exits. Then dynamic demand supply formation, these are basically related to moving averages. Then moving averages is pattern. These are basically we are using to identify how the personal stocks are moving or how it may behave in some situation. This is what we can find out from the moving averages. Okay, so then multiple time frame per analysis. ये time frame analysis है, like you have in a chart you have like 1 day chart where the one candle, एक candle एक day को represent करता है. Then you can have the like a chart having 1 week, then 1 year, देन उसके भी बाद आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो, उसमें क्या हो रहा है वो भी देख सकते हो. देन मल्टीपल टाइम एनालिसिस इज बेसिकली हमको शॉर्ट टर्म मीन्स शॉर्ट टाइम फ्रेम से बिगर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है इसका एनालिसिस करने. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल टेक द डिसीजन वेदर वी हैव टू बाय, वी हैव टू सेल, व्हाट वी हैव टू डू. Then RR time.
RR टाइप का मतलब है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। सी व्हेन जब मैं पैसा पुट कर रहा हूँ, मैं कुछ तो रिस्क ले रहा हूँ, देन मैं किसके लिए पुट कर रहा हूँ, मुझे कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए, तो मुझे कुछ तो आउटपुट या प्रॉफिट चाहिए। देन मैं रिस्क तो रिवॉर्ड टाइप मेरा क्या होना चाहिए, इफ आई एम रिस्किंग माई 1 rupees, I can get the 2 rupees. So this is called as a 1:2 risk reward. Then if it is similar to this, if I am risking 1:3, this is the RR type. Like generally we are looking for more than 1:3. 1:3 is a minimum. Like I am able to lose or I am ready to lose 1 rupees in the terms of 3 rupees profit. This is the RR type. This we will explain. उसके बाद मैं बोलूँगा प्री मार्केट एनालिसिस, दिस इज द मच, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिफोर मार्केट स्टार्ट मीन दैट एक्चुअली दैट प्राइस मूवमेंट हैपन्स, आपको सब कुछ रेडी करके रखना है। अगर मार्केट यहाँ गया तो मैं ये करूँगा, मार्केट यहाँ गया तो मैं ये करूँगा, मेरा ये टारगेट होगा, मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, ये एंट्री होगा। बिफोर मार्केट स्टार्ट, मार्केट स्टार्ट है 9 o'clock इन द मॉर्निंग, मार्केट स्टार्ट होने के बाद कोई भी एनालिसिस नहीं करने का, देन कोई भी ऐसे रैंडमली जाके ट्रेड नहीं लेने का कि विवेक ने डाला है, विवेक ने फोन किया है, नहीं, यू डोंट हैव टू, ये करने का नहीं है किसी भी मार्केट में कि किसी ने बताया कि आज ये हुआ है, आज ये न्यूज़ आया, फिर निर्मला सीतारमन आ गई टीवी पे, ऐसा सब कुछ नहीं करने का। तो बिफोर मार्केट आवर्स क्या क्या करने का है, क्या स्टडी करके रखने का है, वो टेम्पलेट है, वो बताऊंगा प्री मार्केट एनालिसिस। देन ट्रेड टाइप एंड अलर्ट्स, दिस इज व्हाट there are so many trade types, it depends upon your personality. Like suppose somebody are, कुछ कुछ लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ कुछ लोग स्मॉलेस्ट रिस्क टेकर है, कुछ कुछ लोगों को दिमाग को शांति चाहिए कि लाइक आई विल पुट मनी, आई विल वेट फॉर 4-5 months एंड आई विल गेट आउट ऑफ 10-20%, आई एम ओके। कुछ के लोगों को दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना है और हर दिन का 1-1% लेना है, लाइक even they are getting stopped out, they are getting, or I don't know क्या मिलता है उसे, but this is other trade type. So basically this is short term, long term and medium term trade that you are looking for, ये बताएंगे उसमें। alerts is like this, see मैं सारे स्टॉक को मैं अकेला देख नहीं सकता, आप सब लोग भी वर्किंग होंगे या कुछ काम में होंगे, तो आप सबको देख नहीं सकते। तो एक फंक्शनैलिटी आता है इन योर चार्ट और इन योर ब्रोकर अकाउंट कि एक अलर्ट या अलार्म पुट कर सकते हो आप कि प्राइस यहाँ यहाँ पे गया तो मेरे को एक मैसेज भेजो, या फिर आपको एक मेल आएगा या फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल में, एंड तब आपको पता चलेगा कि ये प्राइस यहाँ पे पहुंचे। देन आपको क्या एक्शन लेने हैं, वो आपने ऑलरेडी मार्केट आवर से पहले डिसाइड करके रखा है। अगर ये प्राइस यहाँ पहुंचता है तो मैं क्या करूँगा, बाय करूँगा, सेल करूँगा, या फिर मैं विवेक को फ़ोन करूँगा, ये सब चीज़ें पहले से ही डिसाइड होना है, मेरे को फ़ोन नहीं करने का। देन 5 स्टार प्रोसेस फॉर ट्रेड हंटिंग, this is something like a step down approach or step by step approach to find out the daily or weekly trade, like मैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये प्रोसेस में जनरली जो इजी स्टॉक करो ग्रुप में जो मैं ट्रेड डालता हूँ उसका लॉजिक बताऊंगा, सिंपल। एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यू कैन टाइप इट डाउन और यू कैन से somebody से, या मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ? हाँ विवेक, Yes, able बाकी to viewers आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा, आपके डाउट्स जो भी होंगे आप बोलो, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है उसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। At the विवेक को end of हिंदी, इंग्लिश, session, मराठी we तीनों can, आती at the है। end of session, I can try to answer everybody. question. एक बार मेरे को ये स्लाइड खत्म करने दो, मैं सबका आंसर दूँ। कोई है डाउट तो अभी रखो अपने पास, लाइक आई कैन आंसर इट। अभी तक का समझा है ना, बट कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली क्या चल रहा है। हेलो, कोई तो हाँ विवेक, या
Okay, fine. And we are moving. जी Yeah. Then next is like this one is the moving average investment process. This is not regarding the trading. This is like if you want to build a long-term portfolio, then what you are looking basically the rules or steps how you can invest for the long term on the basis of moving average, then on the basis of some pattern, then on the basis of some rules, or there are the things which you can look into the charts. From that basis you can invest your money for next 20, 30, 40 years. So this is what we can learn. Then the pattern identification for the bigger goal. Yeah, I'm recording the session anyway. If it is not recording, you can reach out to me, not an issue. This is going on, I think. Yeah, this is going on. Then pattern identification, if you go for bigger goal, it's like a there is a there is something you can look into the chart, the one pattern or personality of some stock. From that you can think this stock is for the longer term or for the bigger returns. Then this how to identify, how to put money, or you have to how much to put money. This this thing you can find out or you can learn. Then this is somebody know this legendary PS is the position sizing. Anybody knowing this position sizing? Or somebody, you can open your mic and you can start speaking also, like what you know for the position sizing, or you don't know also. You can say if you know, it's okay, we'll learn. मुझे एटलीस्ट नहीं पता है क्या होता है पोजीशन साइज. Okay, fine, we will learn in this. Okay, बाकी लोग भी बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें बता रहा. क्या है, सबको इंडिविजुअली बताने से अच्छा है कि मैं सोचा एक बार सबको बता दूं, ऐसा सी. ओके फाइन. देन लीजेंडरी पोजीशन साइजिंग इज द पोजीशन साइजिंग. ये एक ही चीज़ है, आप मेरे से सीख के जाओगे तो लाइफ में बहुत शांति रहेगी. आपको पैसा मैनेज करना है, लाइफ मैनेज करना है, कुछ भी मैनेज करना है, पोजीशन साइजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इज हाउ मच टू पुट, हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू डिक्रीज. Suppose you have 10 lakh or you have 10 crore also, then position sizing is much more important. शांति से सो पाओगे if your position sizing is at the place. Tomorrow न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट वी विल लर्न. देन डाउ theory is a theoretical things that how actually market behaves. This we will this we will understand from Dow theory. Then model account building for own wealth. This is how much broker you should have, which broker you can choose, then how you can maintain your account. This is what we will discuss. At least we will discuss. I can put my way of thinking, then you might be change it, or if you want, or you can hold with your own broker and own system. I don't have a problem. Then this is what dummy trading practice with the 10 lakh value. This is I already share with all of you the one app I am trading already on this, which is good, that you can use paper trading for practice. Then pro tip to increase the return mutual. Okay. Normally you people are investing in mutual fund like a SIP mode, like a systematic investment fund. Monthly you are putting, or the money is deducting from your account at some day, like a first or fifth, depending upon your date you have chosen. So instead of that, there is a time when you have to put the money into the mutual fund. Like there is a time when you are buying the stock, there are the time when you are buying the mutual fund. If you apply this logic, you are getting at least 5% return more than other people, because you are buying at a lower value, or you are buying at the smartest level. This is again we will decide by the chart, means properly on the chart or properly by the info. Then predefined wealth creator, this is already I have shared so many times, I will add some more into it. Then nominee overview, this is much more important. Some of people are knowing this. I am not, I'm new to this, but we will discuss like a nominee,
how you can have the nominee into the place and why it is important, and whatever the pros and cons. This also we can important. Everybody understood till the time what we are saying? हेलो, बोलो भाई, सब बोलो. जी ले आप थोड़ा हिंदी में बताएंगे तो अच्छा. अच्छा अच्छा, सॉरी. ओके, ट्राई करता हूँ. ओके थैंक देन ये बेसिकली ये सब में अपन लोग सीखेंगे कि लाइक व्हाट इज द प्रोसेस टू ट्रेड द मार्केट, और लाइक व्हाट इज द प्रोसेस to invest. You should not put your money by the random, because that is a money where you have earned by doing some work. You should not lose into the market. So there is a strategy, there is a set of rules, or there is a plan before you are investing or before you are trading. So that we will learn. And why we are, अपन लोग प्रोसेस के पीछे क्यों भाग रहे हैं. सब लोगों को पता है कि प्रोसेस रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस रिजल्ट देता है. आप स्कूल में क्यों जाते हो, कॉलेज में क्यों जाते हो, इंजीनियरिंग क्यों करते हो? क्योंकि 1000 लोगों ने किया हुआ है, आपको पता है वो प्रोसेस है, उसके बाद मेरे को जॉब मिलेगी. सो दिस इज द प्रोसेस. सो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आपको प्रोसेस पता होना है कि मैं ये करूँगा, ये स्ट्रैटेजी करूँगा, ये रूल्स अप्लाई करूँगा, ये प्लान करूँगा, तो मेरा प्रोबेबिलिटी हाई है प्रॉफिटेबल रहने का. देर विल बी द चांस वेयर आई कैन हैव लॉसेस. ऐसा नहीं होगा कि लॉसेस नहीं होगा, बट लॉसेस मिनिमाइज होंगे. इसका एग्जांपल ऐसा है कि लाइक आपका अगर आपके हाथ को कुछ हुआ है, मैंने पहले बताया था एग्जांपल, आपके हाथ को कुछ हुआ है, तो आपको अभी डिसाइड करना है कि मेरा उंगली काटना है या मेरे को हाथ तक दर्द होने का, हाथ काटने तक वेट करना है. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो. मैं उंगली काट के बाकी हाथ से काम कर लूंगा. सो दिस इज व्हाट मेकिंग योर लॉसेस आर स्मॉल. देन ट्रेडिंग सिस्टम, जो कुछ हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सभी लगता है मुझे एक ट्रेड डिसाइड करने को. जो इजी स्टॉक करो में मैं एक ट्रेड डालता हूँ या फिर 10-12 ट्रेड डालता हूँ, ये सब चीज़ें लगती है उसके पीछे कि मुझे एक ट्रेड डाल का स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट डालना है. और वो सब आता है एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम. मतलब इसको सबके मिला के एक ट्रेडिंग सिस्टम बनेगा, मतलब सेट ऑफ रूल्स बनेगा, या तुम्हारी प्रोसेस बनेगी, या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बनेगा. एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ स्ट्रेटजी विच यू कैन यूज फॉर आई डोंट नो हाउ many years, like next how much years that you want to use. So this is the pattern identification, the process and strategy. Okay. And this is what we are providing already. ये है सब लोगों के पास है, लाइक स्टॉक क्लब का डेली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. जब तक आप लर्न कर रहे हो मैं हैंड होल्डिंग करूंगा 1 ईयर तक लगभग. जैसे कि मेरा मानना है जितना मैं बताऊंगा उतना आप 1 ईयर के अंदर लर्न कर जाओगे. उसके बाद अपने आप खुद से ट्रेड फाइंड आउट करके छोटे अमाउंट से, मे बी विद द वन क्वांटिटी यू विल ट्राई, और यू वांट टू ट्राई, आप पेपर ट्रेड ले सकते हो. यू कैन गो अहेड एंड डू इट. बट ऐसा नहीं करने का डायरेक्टली सब मनी उठा के एक ही स्टॉक में डाल दिया, वो नहीं करने का कभी भी. या फिर क्या है, ये सब बता दिया तो दिखा है ट्रेड तो सब पैसा डाल दे, ये भी नहीं करने का. देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अलर्ट, ये जो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बताता हूँ उसको बस लिखा है, लाइक मोस्टली ऑन ईयरली, हाफ ईयरली. जैसे मैं बताता हूँ कि लाइक दिस इज द टाइम टू यू, लाइक अभी रिसेंटली बताया था डीमार्ट में पैसा डालने का टाइम है, या फिर और कुछ स्टॉक्स में. ओके, दिस इज जनरली द व्हाट वी आर लाइक. मैं किसी को बताना चाहता हूँ, द पीपल हु आर वांट टू लर्न, then they don't want my dependency, then they want to be independent trader or investor. And first of all, like आपको लर्न करने में टाइम लगेगा, सो मे बी आपके जनरेशन को बेनिफिट नहीं होगा. यू कैन टीच दिस थिंग्स टू योर चिल्ड्रन और योर अपकमिंग जनरेशन. सो दिस इज द बेसिक मोटो, आई एम डूइंग इट फॉर दिस. जो भी मेरे को पता है वो बताने का ट्राई करूंगा यहाँ पे. देन यू कैन थिंक ऑफ लाइक you can get it or it is benefited or not. Try it for 1 year.
एक बार लर्न करो, वो लर्न करके पेपर ट्रेड करो, टेक एटलीस्ट 500 ट्रेड्स विद द लॉजिक, लाइक क्यों लेना है, कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे सेल करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू टेक दैट ट्रेड। आपको जो पैसा आपके पास है वो आपने जहाँ से भी अर्न किया है, ऐसे ही मार्केट में जाके लॉस नहीं करना है, आपके फैमिली को वो रिक्वायर्ड है। आई होप सभी ने वो क्या बोलते हैं, फेसबुक पे जो रूल्स डाला है वो देख के एग्री किया होगा। यू कैन टाइप इट डाउन और यू कैन से ऑल्सो if you have done not done but I don't agree also, you can say that. Hello. हाँ किया है विवेक। ओके हाँ, मतलब सबको पता है एटलीस्ट कि क्या हो रहा है उसमें। मैंने बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है कि ऐसा ना हो कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो। ओके, so this is what I want to say finally, access to stocks club, okay this, okay, and this जनरली ऑनलाइन ही होगा। रिकॉर्डिंग में ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करने का अगर रिवीजन के लिए चाहिए, और जो भी डाउट्स होंगे, अभी जो ग्रुप है वो ग्रुप फेसबुक पे है, वहाँ पे आप आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाल सकते हो। एनीबडी कैन कमेंट, बट ग्रुप को थोड़ा अच्छा रखो कि लाइक डोंट पुट न्यूज़ एंड ऑल, क्योंकि वैसे भी वो कोई फायदे का नहीं है। आपको कुछ ट्रेड में डाउट है तो चार्ट के साथ पुट करो, या फिर किसी कैंडल में डाउट है चार्ट के साथ पुट करो, मतलब चार्ट का स्नैपशॉट लो, वहाँ पे पुट करो, आपका जो भी एनालिसिस है वो लिखो। Personally, I will try to comment, or anybody can comment whatever their understanding. In this way, it will go on. Okay, and session mostly मैं try करूँगा 15 days में एक सेशन, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिले, या जो भी मैं बताऊँगा आप जाके इसके बाद ये देखो वो देखो, वो देखने के लिए टाइम मिले। अगर फास्ट हो रहा है तो स्लो भी करेंगे उसको। ये मैंने डिसाइड किया है कि इसको 20 सेशन लगेंगे मोस्टली, 1 घंटा के अराउंड, और 1.5 आवर एंड अराउंड। सो इसको बेसिकली ज़्यादा भी जा सकते हैं, वो कम भी जा सकते हैं, डोंट बी हार्ड ऑन दैट। ओके, नेक्स्ट, oh, this is what, complementary booster. This is maybe I will take after you people learn, you will understand what we are learning or what we are trying to learn. This we will discuss like uh, creation of wealth. See, creation of wealth take the time. You know that the plant you planted, आपने अभी कुछ पेड़ लगाया तो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं आएगा, सो इट विल टेक द टाइम। सो ये बताऊंगा कि नेक्स्ट 20-30, क्योंकि मैं रहने वाला हूँ फॉर श्योर नेक्स्ट 20-30-40-50-60 ईयर्स आल्सो आई विल बी देयर। सो जो लोग रहेंगे दे विल बी क्रिएटिंग द वेल्थ along with me, obviously. Then safest wealth creation strategy as a professional. This is what, like, somebody don't want to put into the risk. There are the ways, there are the processes where you can park your money, you can get the not interest, you can get the return, which is slightly more than your bank, slightly more than the inflation. I hope some everybody understand the inflation. Then slightly more or equal to your mutual fund, but on a safer side. So basically you will start from safe and you will go to the riskiest part. Suppose you as a participant started from the safe, your next generation will start from the risk, because they already seen you for 20-30 years doing this safest to moderate risk type of things. This is something I have write it down in red, that deliver the guarantee of return amount you invest for the learning through the market. अगर आपने जो भी बता रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो फॉलो किया, उसको प्रैक्टिस किया, तो जो भी अमाउंट आप लर्निंग के लिए इन्वेस्ट करोगे, लाइक सपोज आई टुक द 10,000 रुपीज पुट इन टू द मार्केट एंड मैं लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब क्या है, जो प्रोसेस बताया गया है 20 सेशन में वो मैं फॉलो करके उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो रिटर्न आएगा।
सी इफ आई पुट द 20,000 और 10,000 और 50,000, नेक्स्ट 20 30 40 ईयर्स में वो कैसे वापस आएगा ये तो आपको भी पता है, वो तो सो सिंपल है। तो वो मैं भी बताऊंगा तो जल्दी आ जाएगा वापस, लाइक 1 साल में ही वापस आ जाएगा। So this is the guarantee. This is something I can explain like you are putting the money or you are, आप इंजीनियरिंग करते हो या एमबीबीएस करते हो, जो भी प्रोफेशन आप करते हो, वो सीखने के लिए यू आर पेइंग सम अमाउंट ऑफ मनी टू सम कॉलेजेस और सम, वो आपको जो भी सिखाते हैं उससे ज़्यादा मतलब है वो कॉलेज का वैल्यू है, ताकि कुछ कंपनी आती है वो आपको जॉब्स देती है, सिंपल। So you are investing something, learning something, and you are getting in the return in next like 4 or 5 years, or you are in a delivery of your job. So ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं पैसा नहीं पुट करूँगा, मैं डिमेट अकाउंट में पैसा नहीं डालूंगा और पैसा बनना चाहिए, तो ये नहीं हो। यू हैव टू पुट योर एक्चुअल मनी, बट वाई दिस ऑल थिंग्स गोइंग ऑन कि वो पैसा पुट करने से पहले यू शुड नो कि मुझे, मैं क्यों डाल रहा हूँ ये पैसा, ये पैसे के साथ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वो पैसा आपके फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है या आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उसको लूज नहीं करना है। हाँ, देयर विल बी द प्लेस कि मैं लूज करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं लूज नहीं करूँगा, बट ज़्यादा नहीं लूज करना। ओके, सो ये तो गारंटी है। विद दिस नॉलेज इफ़ यू लर्न प्रैक्टिस एंड इफ़ यू रिमेन विथ मी, जो भी आपने, बट कुछ उल्टा पुल्टा मत करना कि लाइक 10 लाख लेके आ गए, एक ही स्टॉक में डाल दिया तो सारे का सारा लूज कर दिया, ऐसी चीज़ें मत करना, ठीक है। सो दिस विल बी द गारंटी दैट यू कैन हैव द रिटर्न। सो दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज व्हेन आई एम गोइंग फॉर प्रोफेशनल, दिस इज फॉर दैट cost and all. This is the first time I am trying to say. Anybody want to look into this, then we can look afterwards. You can say like or chat, or you can open your mic, you can ask the question one by one. We'll try to answer. मैं करूँगा कोशिश। सबको समझ में आया है क्या, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ डाउट है क्या है तो पूछ सकते हो, मैंने बता दिया है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बताइए सोनाली। ये फर्स्ट, विवेक, मुझे एक डाउट है। हाँ बताइए। हम लोग स्मॉल कैप वाले भी जो स्टॉक्स है उसको भी एनालिसिस करना सीखेंगे क्या? पार्डन, हेलो। हम लोग स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स भी एनालिसिस करना सीखेंगे क्या? स्मॉल कैप लार्ज कैप के बाद आता है, बिकॉज डायरेक्टली बता देता हूँ कि लाइक स्मॉल कैप्स आर ऑल मैनेज, वो स्टॉक्स मैनेज रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ये पहले लार्ज कैप या जायंट कैप को फैमिलियर होके, चार्ट को फैमिलियर होके, देन यू कैन मूव टू स्मॉल कैप्स एंड लार्ज कैप। द प्रोसेस इज लाइक बेसिकली आई एम पुटिंग द प्रोसेस, आपको नहीं करना है, यू कैन डू इन अदर वे अराउंड, ऐसा कुछ नहीं है। तो लाइक यू कैन पुट योर मनी इनटू द सेफेस्ट जोन फर्स्ट, जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है लाइक अ लार्ज कैप और जायंट कैप, देन यू इफ यू आर कंफर्टेबल देयर, आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो गए, आपने वहाँ पे पैसा बनाया है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक इफ यू हैव पुट 1 लाख, you have made suppose 50,000 or 1 lakh, then you are moving from large cap giant cap to mid cap, then क्योंकि उसमें मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, देन आप जब इसके मूवमेंट को फैमिली हो जाएंगे, देन यू आर मूविंग टू स्मॉल कैप एंड हर मतलब लार्ज कैप के बेसिकली अभी जो अपन सीख रहे हैं दिस इज एप्लीकेबल टू मोर टू लार्ज कैप। स्मॉल कैप मिड कैप के लिए अलग से प्रोसेस है, अलग से सिस्टम से, आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा, ज़्यादा चार्ट्स, ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, बट सबका बेसिस यही है, जो भी ये ग्रीन और रेड कैंडल में दिख रहा है यही सबका बेसिस है, क्योंकि जो भी ट्रेड होगा, जो भी मतलब बाय सेल जो भी होते हैं, वो हर कोई ये कैंडल में कैप्चर हो जाते हैं, हर प्राइस मूवमेंट।
तो आपको एक बार ये समझ में आ गया, यू कैन टेक द ट्रेड ऑन स्मॉल कैप, मिड कैप्स और लार्ज कैप एनीवेयर, और इवन फॉर द अदर थिंग्स आल्सो लाइक करेंसी एंड ऑल। समझ में आया क्या? और नहीं तो फिर से बोलता हूँ। हेलो हेलो। आया समझ में, थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ डाउट है? बोलो भाई बोलो, आपके लिए ही है, कोई भी बोल सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। आपको पता होना चाहिए आप सैटरडे नाइट को बैठ के क्या कर रहे हो। तो अभी हम लोग धीरे धीरे जो आपने आपने आपके स्लाइड में जो भी टॉपिक्स बताए, हम लोग धीरे धीरे उन टॉपिक्स पे बात या करेंगे ना या आगे वाले सेशंस में। हाँ या तो एक रिक्वेस्ट है विवेक, बताओ। मतलब जैसे कि समझो कि आप जब सेशन ले रहे हो, हम्म। अगर आप हमें वो टॉपिक्स थोड़ा एडवांस में बताओगे ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी हिसाब से थोड़ा सा होमवर्क ट्राई करेंगे। ओके, ये जो स्लाइड है ना, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इसी के हिसाब से जाएंगे, ये जो सीक्वेंस है उसी के हिसाब से जाएंगे। हाँ, या फिर तो जब आप भी क्या सेशन करिएगा का कि आप जब आप जब नेक्स्ट सेशन के लिए आएंगे ना, आपका ओके टॉपिक्स बता दीजिएगा, जब तो भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पढ़ के आएंगे। जब भी सेशन का लिंक होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये टॉपिक मोस्टली कवर कर, मोस्टली ये स्लाइड के हिसाब से जाऊंगा, बट इन डिटेल्स भी वहाँ पे डालूंगा कि आज कैंडल स्टिक है, आज डबल कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है, या फिर आज डिमांड सप्लाई है, या फिर आज रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, ऐसा। तो वो डिटेल नहीं, बट एटलीस्ट टॉपिक डाल दूंगा कि वो लिंक के वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि आज ये है। तो आपको उसके ऊपर डाउट है या फिर कुछ है तो आप देख के आ सकते हो, उसमें पूछ सकते हो, या फिर वहाँ पे कमेंट में भी पूछ सकते हो फेसबुक पे। इसीलिए फेसबुक बना है कि वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप में क्या है कि वो चला जाता है चैट हिस्ट्री में। और किसी को कुछ हाँ पूछना है? राइट, वो बेटर रहेगा। थैंक यू। हाँ, या वेलकम। और विवेक, ये रिकॉर्डिंग आप फेसबुक पे डालोगे? मैं अभी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ। मैं अगर रिकॉर्डिंग सही से हुआ है ना तो मैं वही फेसबुक के ग्रुप में डाल दूंगा। ओके ओके, थैंक यू। या वेलकम। बाकी लोगों को क्या है, सब समझ में आया नहीं आया? और कुछ चाहिए? पेनी स्टॉक एकदम से 100%, 50%, ये सब बट नहीं आता है मेरे हमको एवरीडे कितना देर मतलब इसको पढ़ाई करना चाहिए इस पे ग्रिप आने के लिए? को। देर इज नो टाइम फ्रेम, आप 20 सेशन में भी सीख जा सकोगे, बट क्या है कि इट्स लाइक जैसे मैंने बताया था बीच में, ये स्किल है। लाइक आपको स्कूटी ड्राइव करने के लिए या फोर व्हीलर ड्राइव करने के लिए यू हैव टू गेट इट ऑन द रोड एंड यू हैव टू ड्राइव, क्योंकि आपको पता नहीं है कोई कहाँ से आएगा, कोई कुत्ता आ गया, कोई छोटा बेटा ही आ गया, कुछ आ गया, तो आप उसमें क्रैश कर जाओगे, आपको पता नहीं। मार्केट इज लाइक सेम थिंग। सो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट होते जाओगे, आपका कन्विक्शन बढ़ते जाएगा। दिस इज व्हाट द थिंग। सो द प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये स्किल्स है, और स्किल सीखने के लिए टाइम लगता है। किसी को ज़्यादा लगेगा, देखो कि लाइक I can say if you can look at 200 charts a day, there is a rule like आपको कुछ चीज सीखना है, everybody knows 10,000 number of hours rule। आपको अगर कुछ सीखना है या उसमें मास्टरी हासिल करनी है, सो यू कैन एटलीस्ट स्टडी 10,000 नंबर ऑफ आवर्स। कहीं पे तो लिखा है, मुझे बुक का नाम याद नहीं है। सो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कन्विक्शन है। फाइनली क्या है कि स्टॉक मार्केट में देर इज अ सेइंग, लाइक कोई पर्सन है, लाइक सपोज मैं हूँ, कि मुझे सपोज डॉग से डर लगता है, तो मुझे ये आज मैंने बोला है कि डॉग से डर लगता है, 5 साल बाद आप मिलोगे और जब के भी डॉग देखेगा मुझे तभी भी डर लगेगा। सो दिस पैटर्न रिपीट्स, सो दिस इज नॉट माई पर्सनैलिटी। ओके, सो सिमिलरली स्टॉक में भी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलेगा, वो स्टॉक आपको पता चलाएगा, या
वो बताएगा आपको कि मैं ऐसे बिहेव करता हूँ या मैं ये सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता हूँ। जैसे जैसे आपको वो अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, आप उस वे में एक्शन लोगे। थोड़ा सा टाइम दो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको हिंट लग मिलेगा कि कितना चीजें देखना। जो स्लाइड में बताया है दैट इज हार्डली 30 to 40 टॉपिक्स या 30 to 40 स्टेप्स। इनसाइड दैट there are 4 5 steps that you have to look for a choosing a one stop for a trade or for a investment. So at least 40 50 steps, then combined to that वो सारे सक्सेसफुल है, किसी को इग्नोर करना है नहीं करना है, किसी को पार्टिसिपेंट में लेना है, ये सब आपको डिसाइड करके पैसा लगाना है। सो दिस विल टेक द टाइम, एटलीस्ट आई हैव टेकन द टाइम। नहीं लगा तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया वो दूसरे दिन से हो गया तो सुपरस्टार। बाकी बताओ भाई, और किसी को कुछ पूछना है? स्लाइड्स में भी किसी को डाउट है तो मैं फिर से दिखा तो स्लाइड्स। आप फेसबुक पे वो पीपीटी शेयर हाँ करोगे? पीपीटी डाल, हाँ पीपीटी डाल दूंगा मैं। ठीक चलेगा, मतलब हम लोग फिर दोबारा उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। हाँ यू कैन गो थ्रू, वैसे भी मेरे पास रख क्या है, उसमें कुछ है नहीं ऐसा, सिंपल है। बट किसी को कुछ स्पेसिफिकली नहीं समझा है या फिर तभी पूछना था, इन बिटवीन नहीं पूछ पाए तो अभी भी पूछ सकते। बताओ बताओ, कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नया नहीं है। ये हम लोग इन्वेस्टमेंट सीखेंगे ना, यो like इन्वेस्टमेंट we भी will be और ट्रेडिंग भी। putting a long term goal ना, and नहीं trade. लॉन्ग टर्म गोल वो Okay. डिपेंड्स अपन आपको क्या करना है, आपको क्या सूट करता है। लाइक द पर्सन लाइक मी, मुझे हर रोज वो ट्रेड डालना ट्रेड लेना पसंद नहीं है। आई कैन, मुझे आज ट्रेड लेके 2 4 महीने में पैसा बनाएगा, आई एम ओके विद दैट। किसी किसी को हर रोज चाहिए, किसी किसी को सैलरी के जैसा चाहिए, तो डिपेंड्स अपॉन। किसी किसी को ऐसा है कि मैं मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज बाय करूंगा, मुझे ऐसा कुछ तो चाहिए, आज बाय करूंगा 10 साल तक होल्ड करूंगा। सो डिपेंड्स अपॉन दैट देयर ओन डिसीजन। सीखने के लिए आप सीखोगे हाउ टू ट्रेड और हाउ टू टेक एंट्री। सही, स्टॉक मार्केट में आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में बस एंट्री है। वंस यू एंटर द बाय ऑर्डर और वो एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है। मार्केट कैन बिहेव रैंडमली, इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन, इट कैन स्टेज ओवर देयर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, करेक्ट? सो आपके हाथ में एंट्री है, तो वो एंट्री को फाइन ट्यून कर सकते हैं, वेदर वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेड हो। सी, मैं ट्रेड किसको बोलता हूँ कि जिसमें मैं बाय सेल करूंगा। अभी मेरा कुछ कुछ ट्रेड ऐसा है कि लाइक आई कैन बाय टुडे, आई कैन होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 5 6 10 years, क्योंकि वो अप जा रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों सेल करूँ उसको, नहीं करूंगा ना। दिस इज व्हाट। और किसी को पूछ इसमें हमारे फंडामेंटल एनालिसिस वाले भी टॉपिक होंगे क्या, जो जो चार्ट रीड करते हैं, इसका कितना ये प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर कितना हुआ? सॉरी, इसमें हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस के भी टॉपिक्स होंगे क्या, नहीं होगा। दिस इज प्योरली अ टेक्निकल। जो ये रिजल्ट वगैरह आते हैं, नो क्वार्टरली नो रिजल्ट, नो वो नो, पढ़ना? दैट इज व्हाट आई टोल्ड नो, कि फंडामेंटल एनालिसिस के अगर मैं 10 एनालिस्ट बिठाऊंगा और उसे एनालिसिस करवाऊंगा, उनका किसी स्टॉक का बाइंग प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस डिफरेंट डिफरेंट आएगा, एंड यू कैन नॉट कम टू द रिजल्ट। वैसे अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के 10 बंदे क्या 100 बंदे बिठाऊंगा, और अगर वो टैलेंटेड है
तो उनका जो प्राइस ऑफ एंट्री है और प्राइस ऑफ एग्जिट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। एंड सेकंड कि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें डेटा प्योर है, क्योंकि हर कोई ट्रेड मतलब जो भी ट्रेड होता है या जो भी प्राइस से में बाय होता है सेल होता है वो सारा ये टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट में प्लॉट होता है। ये जो कैंडल है ये कैंडल बेसिकली प्राइस और टाइम से बनती है। सो ये इसमें हर एक एक्टिविटी मार्क होगा। सो इसका जो एनालिसिस हो वो डेटा करेक्ट है। और सेकंड थिंग जो फंडामेंटल एनालिसिस है जो भी रिपोर्ट्स है या जो भी है वो जो लोग बनाते हैं वो बेसिकली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक सीए होगा या फिर हायर मैनेजमेंट होगा जो भी उसका ओनर होगा, दे कैन इजीली मैनिपुलेट। आपको ओरिजिनली नहीं पता है उनका सेल क्या है, उनका क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, आपको नहीं पता है और कोई भी फाइंड आउट भी नहीं कर सकता because they have their in professionals into the place. You cannot go and study that. And basically जितना मैंने अभी टॉपिक बताया है उससे 10 गुना ज्यादा टाइम एनालिसिस के लिए गेला फंडामेंटल एनालिसिस, स्टिल यू द रिजल्ट आर पुअर। ये प्रूवन है, इसीलिए बेसिकली लोग टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा सीखते हैं रादर देन फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट है? हेलो, किसी को और कुछ डाउट है? अगर नहीं है तो वी कैन क्लोज। आई विल ट्राई टू मतलब कल तक ये रिकॉर्डिंग भी ट्राई करता हूँ पुट करने का और वो पीपीटी भी। आई थिंक कोई भी नहीं है। मेरे तरफ से तो ओके है, बाकी बाकी लोग आप प्लीज बाकी बता। लोग भी बोल सकते हो अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ लग रहा है आपको कि ये No doubt from my end. ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? किसी ने कुछ भी नहीं बोल रहे भाई, नहीं समझ रहा है तो भी बोल सकते हो। ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है या फिर कुछ भी नहीं समझ रहा है। बोलो भाई बोलो, सबको कुछ डाउट है तो भी बोलो। विवेक, थैंक यू सो मच इतना इतना हमें डिटेल में सिखाने के लिए। अरे बाप रे, अभी तक कुछ नहीं सीखे। ये तो बस ओवरव्यू है, ट्राई करूँगा कि मतलब जितना पता है वो डिलीवर कर सकता हूँ मोस्टली, कि एटलीस्ट आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे कि जो माइट भी कर सकते थे वो नहीं करोगे तो भी इवन इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, इफ यू आर सेविंग मनी यू विल रिमेम्बर मी, दैट कि लॉस नहीं किया है। और किसी को कुछ बोलना है पूछना है फ्रीली पूछ सकते हैं। ये बाकी लोग फैमिलियर है मेरे से बात करने में, उन्होंने बहुत बात किया है तो वो लोग पूछ रहे, बाकी नए लोग भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे और एक डाउट है, जब हम लोग ऐसे लार्ज कैप के ये सीखेंगे तो ऑलरेडी लार्ज कैप स्टॉक के रेट तो ज्यादा होंगे। मतलब मेरे को एक ये फियर है कि भाई अगर 4,000 का आज टीसीएस है तो सच में वो मुझे एक साल बाद बढ़ के देगा क्या? मतलब मैं उतना प्रॉफिट कमा पाऊंगी क्या? देखिए, स्मॉल कैप कितने का सोच रहे हो आप? 100 रुपये या फिर मान लो 500 रुपये, ये जो भी है, ठीक है। द लॉजिक रिमेन सेम, द परसेंटेज ऑफ लॉजिक रिमेन द सेम। 100 रुपीज के आपको 10% आ गया तो इट्स हाउ मच? 10 रुपीज, करेक्ट? हेलो, किसने पूछा? यस यस। हाँ हाँ। सो सिमिलरली
मेरा 4000 का स्टॉक पे मेरे को 10% आ गया. I will talk in terms of percentage, not talking in terms of that number कि वो big है small है. And apart from that मेरे को TCS का जितना डेटा, TCS in the sense जो भी लार्ज कैप, जितना डेटा अवेलेबल है मेरे पास एनालिसिस के लिए, उतना डेटा मेरे पास स्मॉल कैप का अवेलेबल नहीं है. स्मॉल कैप क्या होता है, दिस इज द इमर्जिंग, अभी अभी आया है, करेक्ट. तो उसमें मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है एनालिसिस करने के लिए. देखो मैंने तभी एग्जांपल बताया था कि मैं आज डॉग से डरता हूँ, 5 साल बाद भी वही सिचुएशन है, तो तुमको पहले से पता है इसको डरना है तो डॉग लेके आओ, करेक्ट. ऐसे ही कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो आप उसका बिहेवियर पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. आपको उसको 4-5 साल 10 साल देखना पड़ेगा कि वो किस सिचुएशन में कैसे बिहेवियर करता है. देन आप उसकी पर्सनालिटी या फिर उसके बिहेवियर पे कमेंट कर सकते हो. इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो डालूंगा कि क्यों नहीं क्या करना है, द हाउ द स्मॉल कैप्स, बेसिकली स्मॉल कैप मिड कैप. और अगर किसी को मतलब क्या बोलते हैं कि करना ही चाहिए, नहीं मेरे को लार्ज कैप नहीं करना है, मेरे को स्मॉल कैप मिड कैप ही करना है, तो बेसिकली एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद द म्यूचुअल फंड. उसका भी प्रोसेस है कि लाइक ऐसे ही नहीं कि डायरेक्टली जाके बाय कर लिया तो फंस जाओगे. तो मिड कैप से स्टार्ट करो ना. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप. समझा क्या? हाँ विवेक. ओके. और किसी को कुछ? मैं इनमें से सबको जानता हूँ. आई थिंक दिस वन इज न्यू. सबसे बात किया है मैंने ऑलमोस्ट. और किसी को कुछ डाउट है? वी कैन क्लोज आफ्टर दिस. ये टॉपिक्स में भी कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हो. अरे क्या भाई सन्नाटा है, सब लोग खाना खा के सो गए शायद. हेलो. हाँ विवेक. ओके देन किसी को डाउट नहीं है नहीं, आई थिंक डाउट तो नहीं है अभी किसी को. हाँ, हम लोग क्लोज कर सकते हैं. बस एक चीज वही कि नेक्स्ट सेशन में जैसे विवेक ने बताया, तो वो क्या करेंगे, हम लोग को पहली टॉपिक्स बता देंगे, तो हम लोग थोड़ा सा होमवर्क करके आएंगे, ताकि अगर तुम पढ़ोगे तो हम लोग को डाउट ज्यादा आएंगे, है ना. इट्स ओके दैट जो क्या बोलते हैं, आपको याद से लर्न करना है. किसी को कुछ भी नहीं पता है, कभी स्टॉक मार्केट नाम भी नहीं सुने, तो भी वहां से स्टार्ट करेंगे. इट इज ओके. कुछ पढ़ के नहीं आना है तो भी चल. हाँ, जब आप सेशन होने के बाद उस टॉपिक पे कुछ सर्च करोगे, उसके ऊपर कुछ डाउट आएगा, देन नेक्स्ट सेशन में आपको पूछोगे, वो अलग बात, वो कर सकते. मैं तो टॉपिक के नेम्स वो सब डाल दूंगा, तो वो है एटलीस्ट उतना तो कर सकते हैं कि वो टॉपिक का नेम डालना. और ठीक है. एट द एंड हम ऑलमोस्ट वी आर एट दैट 10:21. इट्स ऑलमोस्ट 1 hour. होप आई एम एबल टू शेयर द वॉट एवर आई नो. थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसका, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम आते हुए आपको एक चीज़ प्रिपेयर करके आना है मोस्ट प्रोबेबली. सिंपल थिंग है, कुछ नहीं. अभी मैं दिखा दूंगा यहाँ पे क्या करना है. दिस इज शो डेस्कटॉप. हाँ भाई, डेस्कटॉप पे जाओगे, एक्सेल शीट सबके पास होगा. एक एक्सेल शीट जाके खोलोगे. माइक्रोसॉफ्ट कहाँ गया? एक एक्सेल शीट, अरे एक्सेल खोलोगे. ओके, बेसिकली एक एक्सेल शीट बनाना है आपको, जिसमें
आपको ये सब चीज़ें लिखनी, आपको क्या करना है, आपका मंथली या फिर ईयरली टारगेट लिखने हैं, या फिर आपको आपका क्या बोलते हैं, एक बजट शीट बनाना है। ऐसे कर सकते हो आप। कैसे वो मैं बता देता हूँ कि क्या है। सी, सबको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, हाँ दिख रही है। ओके। बेसिकली क्या है, एक्सेल शीट में जाके आपको क्या करना है, दिस इज व्हाट माय अर्निंग एक्स वाई जेड, जो भी मेरा अर्निंग होगा, सपोज 40,000 मंथली सैलरी होगा, जो भी होगा, देन एक्सपेंडिचर में डालूंगा कि मैं कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ। लाइक मेरा रेंट है, देन मेरा शॉपिंग है। अरे किधर जा रहा विवेक मैं आपको दूं, मेरे पास ये टेम्पलेट रेडी है है? नहीं चलेगा, बेसिकली मैं यहाँ पे विथ बता देता फॉर्मूले। हूँ। यू कैन हैव, मतलब सब उसमें डाल, ग्रुप में डाल दे फिर बाद में, ये सब खत्म होने के बाद ना ग्रुप में डाल दे अगर ऑलरेडी। हाँ मेरे पास 2 मिनट दो मुझे, आपको तुरंत देती हूँ। हाँ, मैं ग्रुप आपको में तुरंत देती हूँ, 2 मिनट्स दो चलेगा। मुझे आप। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका इनफ्लो क्या है, मतलब कितना पैसा आ रहा है, और आपका आउटफ्लो क्या है, कि आपके अकाउंट से कितना पैसा जा रहा है। अगर यहाँ पे आपको 40,000 आ रहा है और यहाँ पे 45,000 जा रहा है तो गड़बड़ है। यहाँ पे 40 आ रहा है और 30 जा रहा है, तो चलो ओके ओके, 10,000 यू आर स्टिल सेविंग, और सब किधर तो है जो पड़ा है, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो या सेव कर सकते हो, जो भी। तो बेसिकली ये बनने, इसको बोलते हैं नेटवर्थ शीट। लाइक यू कैन गो एंड सर्च व्हाट इज द नेटवर्थ। नेट सुना है ना सबने, नेटवर्थ सुना होगा, नेटवर्थ। ओके, सो बेसिकली आपको नेटवर्थ शीट मेंटेन करना है। लाइक इसमें मैं सब डालूंगा, मेरा लोन कितना। मैंने आपको ये किया है, ये है क्या? आपको व्हाट्सएप किया, आप एक बार डालें। हाँ तो एक्सेल शीट पूरा टेम्पलेट रेडी है उसमें। ठीक है, मैं ग्रुप में डालता हूँ, व्हाट्सएप यहाँ से आपके कंफर्म हो लैपटॉप, गया। नहीं, हाँ मैं लैपटॉप स्क्रीन शेयर करूँ अगर आपको चाहिए, करना, मतलब इफ आई कैन शेयर। कर। स्क्रीन शेयरिंग कैसे ऑन करते तेरा, मैं करेक्ट। करती हूँ, मैं आपको पोस्ट डिसेबल अटेंडेंस आपको सेटिंग में जाके सिक्योरिटी में करना होगा। नहीं ठीक है, चलेगा, इतना वो नहीं है, बट बेसिकली सबको ये शीट डाल देगी, अमृता डाल देगी इसमें, तो उसके बाद वी कैन हैव, सबके पास अपना इंडिविजुअल होना है, जरूरी नहीं है कि यही करना है या फिर क्या बोलते हैं, मतलब फॉलो करना है, बट ये बेसिकली नेटवर्थ कैसे निकलते थे वो बस बता देता हूँ। इट्स लाइक नेटवर्थ इक्वल टू जो भी आपका अर्निंग है, अर्निंग माइनस जो भी आपका स्पेंडिंग है, करेक्ट। अगर किसी के पास लोन होगा तो नेटवर्थ निगेटिव में चला जाएगा, मतलब वो वैल्यू पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो निगेटिव होगा। लाइक किसी का भी हो सकता है, मेरा भी है, कुछ इतना वो नहीं है, तो ये निगेटिव वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली कैलकुलेट करेगा कि मेरा नेटवर्थ सपोज 1 लाख रुपीज़ है अभी, तो मेरा अर्निंग 40,000 है, तो ये शीट जो है मैं हर मंथ को किसी भी डेट पे अपडेट करूँगा, एंड दिस इज आई टू रेगुलर है। इससे क्या पता चलेगा, मेरा सपोज अभी कितना है, आज 22 है, मैंने सपोज फर्स्ट पे वो बनाया 2022 को, तो नेक्स्ट ईयर व्हेन इट केम टू 2023 आई शुड नो मेरा नेटवर्थ बढ़ा है या घटा है या फिर क्या हुआ है, एंड उसके बाद आई केम टू नो कि उसको अगर बढ़ा है तो आई विल फॉलो द प्रोसेस, अगर घटा है तो आई आई कैन हैव टू चेंज, करेक्ट। बस इतना ही बोलना था। सो बेसिकली ये ट्राई करो, या फिर ये
बना के रखो, अपने पास ही रखो, ये शेयर करने की जरूरत नहीं है। अमृता टेम्पलेट शेयर कर देगी ग्रुप में, तो वहीं से, या फिर खुद का मैन्युअली भी बना लगे तो भी कुछ नहीं है। मैंने जो एक्सेल शीट शेयर की है ग्रुप में, उसमें पूरा फॉर्मूले भी है। हाँ मैं चाहिए तो, एक्चुअली मैं शेयर नहीं कर पा रही, अदरवाइज मैं नहीं ठीक बता है, मैं देती। कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, कुछ उसमें बस आपको आपका सैलरी पुट करना है और सब फिगर्स डालने हैं, बाकी सारा कैलकुलेशन वो अपने आप करता है। हाँ नहीं ठीक है, किसी को पर्सनल करना है तो पर्सनल कर सकते हैं, ऐसा कुछ, इट्स ओके, इट डिपेंड्स अपॉन कि किसको कौन सा पसंद है। वो एक टेम्पलेट डाल देंगी, उसके हिसाब से अपना अपना बना, इस ये पर्सनली रखना है आपके पास, तो ट्रैक रहेगा कि क्या कर रहे हो या क्या नहीं। ओके, और किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क। बहुत लंबा खींचा है मैंने, इट्स मोर देन आवर। नहीं, ये तो वी कैन क्लोज इट। Thank you all for joining this weekend pay basically. And this mostly this all the people will remain forever in this group. जिसने भी अटेंड किया है या ज्वाइन किया है, this will remain forever. ओके, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो थैंक यू विवेक। या वेलकम। बता कुछ बोल रहे थे तो। Thank you, Vivek. थैंक यू विवेक, थैंक यू वेरी मच। या वेलकम। Okay, hope you have enjoyed. Happy weekend. We are closing. We'll try to put this PPT and link also, this recording also, if it is available. Okay, fine. Thanks and bye bye. A happy weekend. हम लोग वीकली वंस मिलेंगे ना, मतलब वीकेंड पे ओनली रहेगा, बट सैटरडे या संडे वो शायद पता नहीं, बट वीकेंड्स में ही रहेगा, सैटरडे या संडे। ओके ओके। ओके चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।